तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। राग कानड़ा बाणी नाम देव जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ऐसो राम राय अंतर जामी। जैसे दर्पण माहिम बदन परवानी। रहा बस कटा कट लीप नाशीप। बंधन मुक्ता जात नादीस। पानी माहिम देख मुख जैसा। नामे को स्वामी बीठल ऐसा। पानी माहिम देख मुख जैसा। नामे को स्वामी बीठल ऐसा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर भगत बाणी विच भगत नामदेव जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1318 अंग ते दर्ज है। ये इस राग का अंतला शब्द है। भगत बाणी का ये इको ही शब्द है जो कानड़ा राग विच है। इस शब्द की विचार भाई रघुवीर सिंह जी प्रचारक दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो इस गुरु घर विच ग्रंथी साहब की सेवा भी निभा रहे हैं, आप जी को सरवण करवाउणगे। कल तो कल्याण राग की आरंभता होवेगी। अमृत संचार हर ऐतवार होंदा है।
11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤ ਚਰਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਲੋਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰਈ ਵਖਿਆਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਹਿ
रहें। तेहा हाँ करई वख्यान। धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज पातशाह, तिन्हां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुग जुग अटल धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दे हजूर बैठ कर लंबेरे अरसे तो जो पावन गुर शब्द लड़ीवार कथा श्रवण करते आ रहे हाँ। अज दा जो पावन शब्द भगत नामदेव साहब जी की रसना तो उच्चारण होया, कानड़ा राग दे अंदर जो दर्ज है, जिस दा मूल पाठ आप जी नूं सत्कार सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी तिन्हां दी मुबारक रसना तो आप जी ने श्रवण किया है। आओ इस पावन पवित्र शब्द नूं विचारण दा हिरदे च वसाउण दा यतन करिए। विचार प्रारंभण तो पहला नचीज दासरे नूं असीस बख्शिश करदियां गुरफतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि सिंह साहिब जी ने आप जी नूं जानू करवाया कि एक कानड़ा राग दे अंदर भगत नामदेव साहब दा इक्को ही शब्द है और इस शब्द तो कानड़ा राग दी जो समाप्ति भी है और इस पावन शब्द दे अंदर भगत नामदेव साहब ने कृपा की समझाउण दा यतन किया कि वो परमात्मा अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु इस संसार दे अंदर जगत दे अंदर जरे जरे दे अंदर जां हर थां ते ओ परमात्मा मौजूद है। हर जीव दे अंदर और हर भावें ओ कैसा भी ओदा जीवन होवे, माड़ा होवे, चंगा होवे, दैवी गुणां दा भरपूर होवे जां बदी दे नाल ओ भरिया होवे, महाराज कहंदे भी कैसा भी है पर ओ परमात्मा अकाल पुरख सब दे अंदर वस्ठा होया है और सबना दे अंदर बैठा होया, सब दे अंदर वसिया होया वो परमात्मा निर्लेप है। ਇਹਦੇ ਤੇ इस तरह का कोई भी भावें कोई ऐबी है, कोई किसी भी तरह का परमात्मा ते ना ते जे दुनिया की माया की गल गुरबाणी ने कीती, साहब कहंदे ना ते संसार की माया का प्रभाव है परमात्मा ते और ना ही वो भावें किसी भी हरेक जीव दे विच बैठा होया हर बंदे दे अंदर मौजूद होने तो बाद भी भावें वो चंगा है माड़ा है, साहब कहंदे सबना दे अंदर बैठा वो निर्लेप है, उहदे ते कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं। इस शब्द की आरंभता महाराज ने की ऐसो राम राय अंतरजामी, साहब कहंदे भी ऐसो राम राय अंतरजामी, राम राय तो भाव परमात्मा सतगुरु निरंकार अंतरजामी। अंतरजामी शब्द जदों भी असी पढ़ते जां सुनते तो सुभावक साडे मनां दे अंदर ख्यालात ये फुरने बनने शुरू हो जाते भी अंदर दी जानन वाला। ये तो ठीक है, बहुतात असी अर्थ पढ़े भी ये ने भी अंतरजामी अंदर दी जानन वाला, साडे अंदर दी बुझण वाला, जो साडे अंदर साडे हिरदे दे विच साडे फुरनियां दे विच जो संकल्प पैदा हो रहा है उहदे बारे जानू होने वाला अंतरजामी है। पर प्रोफैसर साहब सिंह ने एक अर्थ होर भी दसे, उन्हें कहा भी अंतरजामी तो भाव भी जिहड़ा अंदर तक पहुँच करन वाला है, भाव हर एक दे अंदर तक पहुँच करन वाला, भावें वो जीव जलदे होण
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਲ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਖ, ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਪੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-3 ਫਰਮਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ
अंतरजामी मेरी शरधा पूर हर राया। हे सतगुरु मेरी ये शरधा है, मेरी ये अरदास है, मेरी ये तेरे चरणों विच बेनती ये पूरी कर, क्योंकि तू अंतरजामी अंदर दी जानन वाला है। ते जेड़ा अंदर दी जानन वाला अंतरजामी सतगुरु ते अरदास है भी गुरसिख मेल मेरी शरधा पूरी। गुरसिखां दा मिलाप निरंकार दे नाम नू जपन वालियां दे प्रति मेरा स्नेह बन जाए। मैं वार वार उन्हां दे कोल बैठ के गुरु दी सिक्ख्या गुरु दा उपदेश धारण कर सका। क्यों धारण कर सका? ये भी गल भगत नामदेव साहब दा शब्द है। ते भगत जी कहते भी जे को मुँह उपदेश करत है तां वण तृण रतड़ा नारायणा। कहते भी एवें नहीं गुरसिखां दी धूड़ जां गुरसिखां दा संग मंगिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਤੜਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਦੀਖਿਆ ਦੇ, ਸਮਝਾਏ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਥਲ ਹੋਵੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਰਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਮਈਆ, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमात्मा, तू आपे सब कुछ जानदा। बदत तरलोचन रामईया, हे परमात्मा तू आपे सब कुछ जानन वाला है, सब कुछ जानन वाला है। तेरे अगे असी ते बड़ी वार गुरमुखो ये शब्द पढ़ लेने आ, बड़ी वार असी बड़ी वार सुनिया, सब नू याद भी है भी विन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचै अरदास। असी सब नू सानू याद है भी असी कहने भी रब परमात्मा बिना बोलिया सब कुछ जानन वाला। असी तकरीबन बड़िया तो कहंदियां होया सुनिया भी रब सब कुछ जानन वाला है जी, पर यह गल पता हुंदियां होया भी वो सब कुछ जानन वाला फिर भी बंदा इस लंबी लिस्ट एक बना के आके खड़ा हो जाता है भी आ भी आ भी आ भी सब कुछ इन्ना चाहिए, एदो चाहिए हर वक्त है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की पवित्र बाणी नू पढ़ियो। तो महाराज कह लगे भी बंदा हुण जिन्ना मर्जी कहंदा रवे। ये तो एक वपार दे सिंह साहब जी जदों शाम नू कथा करते सूरज प्रकाश ग्रंथ दे, ते इन्हां एक पंक्ति सुनाई सी किसी अदीब दे बचन। वो लिखदा कहंदा भी संसार दे विच जगत विच बहुता जो अज हो रहा है, जो असी समाज दे अंदर विचरदिया होया वेखदे हैं भी हर एक बंदे दी एक तमा है, तृष्णा है, उहदे अंदर दी एक जगियासा है भी मैं सब तो ज़्यादा प्राप्त कर सकां, बहुत मैनू मिल जाए, उहदे बाबत मैं करा थोड़ा पर मिल मैनू बहुत आ जाए। तो वह व्यापार शुरू कर लिया उहदे बाबत भी मैं इन्ने दिन चलीहे कटांगा, 40 दिन गुरुद्वारे आवांगा, आ रुमाले भी लैके आवांगा, इन्नी भेटा होवेगी, इहदे बाबत मैनू आ मिल जाना चाहिए है। तो वह अदीब दे बचन सिंह साहब जी ने सुनाए सन। कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना से। कहते भी कई लोग ना जन्नत तो भाव सुख कह दिए, तमन्ना आशा कह दिए। जदों सानू पता है कि रब परमात्मा अंतरजामी सब कुछ जानन वाला, ये तो पर्दा कुछ नहीं। तो चौपाई साहब विच असीं पढ़ते हैं भी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। इस सिद्ध हो गया ना भी भला कौन आ रहा है, बुरा कौन आ रहा है, गुरु नू पता है भी केड़ा बंदा मेरे कोल केड़ी शरधा लैके आ रहा है, ये सतगुरु जानदा है। महाराज कहंदे भले बुरे की पीर पछानत। कोई बंदा अपने तन ते लिबास पाके बाहरों भला बनन दा जतन करे कि वह बंदे नू ते ठीक है अखी कट्टा पा सकता है, मनुख दी अखी कट्टा पा सकता है, पर कि वह गुरु नू धोखा दे सकता है। गुरु दे सामने खड़ा होके कह सकता है भी मेरा केवल उपरों लिबास, जिहो जिहा मैं लिबास पाया उहो जिहा मैं अंदरों बन के आया। वो अदीब कहता भी कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना से। कईयां दी इबादत, कईयां दा सिमरना, कईयां दी सेवा, कईयां दा पुण्य, कईयां दा दान बस जन्नत दी तमन्ना वास्ते है, सुखां वास्ते भी मैनू आ मिल जाए। तो ये मिल जाए ये बाबत मैं 40 दिन आवां, 50 दिन आवां, महीना आवां, सवा आवां, 2 आवां, इन्नी भेटा रखा, आ करा, ये बाबत मैं ये सब कुछ करांगा।
फिर वो अदीब की कहता, वो कहता ये इबादत थोड़ी हुई, ये बंदगी नहीं, सिमरन नहीं, ये पुण्य नहीं, दान नहीं, फिर की है? कहता कुछ लोग इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना से, ये इबादत नहीं, ये तो तजारत है। कहता भी ये इबादत थोड़ा हुई, बंदगी थोड़ी हुई, ये तो सौदा हो गया, व्यापार हो गया। ते व्यापार सौदे दे विच असी सब सूझवान बैठे हाँ, सियाणे बैठे हो। व्यापार दे विच घाटा भी पैंदा है, व्यापार दे विच वाधा भी है, मुनाफा भी है, हानि भी है। कहते भी कुछ लोग जेड़े इबादत इसे वास्ते भी सानू सुख मिल जाए ते जुबान तो ये पढ़नगे भी विन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचै अरदास। परमात्मा बगैर बोलियो सब कुछ जानदा है। ते फिर वो जदों गुरु दे अगे आके निरंकार दे नाम नू अपने जुबान तो अपने हिरदे वो जपना शुरू कर दे ना, ते फिर एक जपजी साहब का पाठ करके वो किन्नियां अपनिया डिमांडा आवी इनू महाराज ने कृपा की। ते गुरु ग्रंथ साहब ने महाराज ने समझाया भी सेवा थोड़ी मांगण बहुता, कहते भी करना कुछ नहीं, ओदी कोई मेहनत नहीं, कोई उद्यम नहीं, जिमें गुरु ने चलाया उवें चलिया नहीं। ते साहब कहते भी सेवा ते बहुत थोड़ी, इबादत ते बंदगी दान पुण्य ते बहुत घट है, पर वो कीते दा भी दुगना बंदा लोचदा है, भालदा भी ਇਹਦੇ तो कई गुना ज़्यादा मैनू मिल जाए। और फिर जे मिल जाए तो बंदा फिर तो खुश, जे ना मिले फिर वो रब नू परमात्मा नू उलांभे दिंदा है, आखदा है भी नहीं परमात्मा नाम की चीज़ कोई नहीं, मैं इन्ने दिन आ काम कीता मैनू मिलिया कुछ नहीं। ये तजारत व्यापार सौदाबाजी है। तो जे गुरु नू असी अंतरजामी जानते ना, अंतरजामी, तो फिर गुरु अगे ये अरदास करया करिए भी सतगुरु अब बाणी एक विच एक बचन है भी प्रभ मेरा अंतरजामी जान। कहते भी मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु जान भी वो अंतरजामी अंदर दी जानन वाला। ये अगे आके बहुत ही उच्ची उच्ची बोलण दी लोड़ नहीं, सब कुछ जानदा है। बाबा कबीर साहब दे श्लोक पढ़ियो ते भगत कबीर साहब कहते, कबीर मुला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होए। कहते भी हे भाई किन्ना भी बंदा उच्ची उच्ची जाके रब अगे परमात्मा अगे खुदा अगे अर्जोइयां करदा रहे, उच्ची उच्ची जाके मंगदा रहे, कहते भी वो बहरा थोड़ी, वो बोला थोड़ी है, थोड़ी भी रब नू सुनदा नहीं। ਇਹਦੇ बाबत ते धन गुरु अमरदास महाराज ने कृपा की भी रब ते वो भी जानदा है जेड़े अजे तेरे अंदर ख्याल भी पैदा नहीं होए, जेड़ी चितवना अजे तेरे संकल्प तेरे फुरने तेरे दिमाग विच नहीं आई, परमात्मा ओदे बारे भी जानदा है। तो फिर तू केड़े पासे केड़ी मंग वास्ते केड़ी डिमांड वास्ते तुरिया भी आ सब कुछ। महाराज कहते प्रभ मेरा अंतरजामी जान, वो परमात्मा अंतरजामी है, कर कृपा पूरन परमेश्वर निहचल सच शब्द निशान। कहते भी जेड़ा निहचल है, जेड़ा अटल है, जेड़ा कदे भी हिल नहीं सकता, वो केवल गुरु का शब्द है। तो महाराज कहते जदों वो शब्द हिरदे च वसा लेगा ना, तेरे अंदर वस जाएगा, उस शब्द के मुताबिक तू तुरना शुरू कर देगा, तेनू भरोसा हो जाएगा कि रब परमात्मा अंदर दी जानन वाला है, अंदर दी। ते अंतरजामी दे अगे जा करके मैं ये बेनती, हाँ ठीक है सानू गुरबानी मुताबिक गुरु अगे आके ये अरदास करनी चाहिए भी सतगुरु जिमें भगत रविदास साहब जी ना शब्द पढ़ते हो ना भी हम सार दीन दयाल ना तुम सार अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै, हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल। हुण ये अरदास अंतरजामी अगे हर रोज करो ते हर वक्त करो, हर समय करो। की कहते भगत रविदास साहब कहते बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों चीर भयो दर्शन देखे। कहते भी हे सतगुरु मैं ये अरदास करदा भी बड़े जन्म हो गए तेरे तो विछड़िया, बड़ा समा हो गया, बड़े समय बाद मैं तेरे चरणों दे विच आके वार वार ये बेनती करदा अंतरजामी सतगुरु हे अंदर दी जानन वाले, मैं तेरे तो विछड़िया टुटिया बड़ा समा हो गया, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो,
ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे लेखे, ਇਹ जन्म मैं तेरे लेखे विच ला के ਇਹ आस कर सका भी दाता मैनू तू दीदार बख्शेगा। और ਉਹਦੇ वास्ते भी भगत फरीद साहब ने किरपा की। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦਰਪਨ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ, ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਬਦਨ ਸਰੀਰ, ਪਰਵਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਜ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਰਪਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜੈਸੇ ਦਰਪਨ ਮਾਏ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਮੇਰੇ ਆ ਜਾਏ ਅੜਿੱਕੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਵਨ ਮੁਖ ਨਾਸਕਾ ਹਸਤ ਪਾਮ, ਚਿਹਨ ਅਨੇਕ ਮਨ ਮੇਕ ਜੈਸੇ ਮਾਨੀਐ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਲੋਚਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋਣ ਕੰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਿਹਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਮਨ ਮੇਕ ਜੈਸੇ ਮਾਨੀਐ। ਮੇਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਮੇਕ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਅੰਗ
प्रबल, कहते भी मेरा जिहड़ा अंग अंग भावें एक एक है, कहते भी ये इन्ना कु ज़्यादा संसार दे अंदर वो दुनिया दे रस खा खा के अंग अंग पुष्ट तुष्टमान होत जैसे, कहते अंग अंग पुष्ट कहते ने मजबूत नूं, तुष्टमान तो भाव खिड़ जाना। कहते भी मेरा अंग अंग खिड़ जाता है, मजबूत हो जाता है कदों, कहते एक मुख स्वाद रस अर्पत मानी है। कहते भी मुख एक है, अनेका तरह के स्वाद जदों इनू अर्पित करीदे ने, अर्पित तो भाव इनू देईदे ने, इहदे अगे रखीदे ने। हुण साडा मुख एक है, जुबान एक है, ते अनेका प्रकार दे स्वाद खा खा के कहते भी अंग अंग पुष्ट तुष्टमान होत जैसे, कहते भी ये अंग अंग मेरा खिड़ जाता है, मजबूत हो जाता है, चाह चढ़ जाता है कि जो मैं लोचदा सा, जो मैं चाहुंदा सा, वो कुछ मैनू खाण वास्ते मिल रहा है। ते तीजी गल विच भाई गुरदास साहब उन्होंने कृपा की, कहते इस तरह मूल एक शाखा पर शाखा जल ज्यों अनेक, कहते भी मूल एक मुढ़ एक है, ते उस मुढ़ तो किन्नियां ही टाहनियां किन्ने पत्ते शाखा पर शाखा निकलदियां आउंदियां ने। कहते मूल एक शाखा पर शाखा जल ज्यों अनेक, कहते भी जिवें मुढ़ विच मूल विच पानी पाईदा जल पाईदा, ते उस जल तो कह लगे अनेका जिहड़ियां पंखड़ियां अनेका टाहनियां अनेका शाखा दरखत दे विचों पैदा हुंदियां, मूल चों पैदा हुंदियां है। इस तरह भाई साहब कहते विवेक ब्रह्म ज वेदक अर मानी है, कहते भी इस तरह जिहड़ा ब्रह्म है ना, ब्रह्म परमात्मा, कहते भी ओदा ज्ञान हिरदे दे विच मन्निया जांदा है, भावें शाखा अनेक ने पर मूल इको ही है, मुढ़ इको है, मुढ़ दियां शाखा अनेक हो जान, टाहनियां अनेक हो जान, पर मूल मुढ़ फिर भी इको रहेगा। ते भाई साहब ने अंत विच कृपा की समझाया, कहते भी तैसे गुर सिख दर्पण देखियत आपा आप, कहते इस तरह जिहड़ा गुरु का सिख है ना, गुरमुख है, गुरु प्यारा है, दर्पण देखियत आपा आप, गुरु दे शब्द रूपी दर्पण दे विचों अपना आप वेखदा है, अपना हिरदा वेखदा है, अपना मन वेखदा है, अपने कर्म वार वार अपने सामने लेके आउंदा है। महाराज कहते गुरमुख दर्पण देखियत आपा आप आत्मा, कहते भी वो आवेश परमात्म ज्ञानी है, वो आत्मा नू परमात्मा दे दर तक लैके जाण वास्ते गुरु रूपी दर्पण दे सामने आपदे मन नू खड़ा कर दिंदा है। ते फिर उन्होंने ये भी समझाउंदा है भी भलिया तू रब दा रूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। उन्होंने फिर वार वार ये भी समझाउंदा है भी जेड़े काम नू तू वार वार भजदा है ना, उठदा है, तो फिर वार वार दसदा है भी मेरा कर्म फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, उन्होंने छड्ड दे तज दे, गुरु तेरे सामने ये सब कुछ रख रहा है भी तेरे कर्म इदां दे ना होण जेड़े कर्मां दे करके जदों तू गुरु रूपी शीशे दे शब्द दे सामने आए ते उत्थे आके तेनू शर्मिंदा होना पै जाए, उत्थे तेनू अपनी गर्दन अपनी तौण नीवी करनी पै जाए। भगत नामदेव साहब कहते भी मेरा सतगुरु अंतर जामी अंदर दी जानन वाला, ते वो इस तरह जानदा कहते भी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी, जिवें दर्पण शीशा प्रतख विखा दिंदा है भी तू इदां दा है, ते गुरु मेरा अंतर जामी अंदर दी जानदा है, ते गुरु दा शब्द मैनू मेरे अंदरूनी कर्म विखाउंदा है। ते अगे कृपा कीती बसै घटा घट लीप ना छिपै। हुण भगत नामदेव साहब कहते भी वो घट घट दे विच वसदा है, लीप लीप तो भाव लेप, कादा लेप, माया दा लेप, बुराई दा लेप, दुनिया दे अंदर बदी दा लेप, वो परमात्मा ते नहीं, निरंकार ते नहीं। पहली गल महाराज कहते भी बसै घटा घट, ये बाबत असी बड़ी वार सुनिया है, बड़ी वार असी कथा दे विचों जां बड़ी वार गुरु दे शब्द भी सानू याद होवणगे, जिवें गुरु तेग बहादुर साहब दाता श्लोक विच समझाउंदे ने। महाराज कहते घट घट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार, हर एक हिरदे दे विच रब परमात्मा वसदा है। संतां ने गुरु क्या सिखा ने पुकार पुकार के आख्या है भी मता किते ये अपने हिरदे च सोचो भी उन्होंने जंगलों च खोजन चले जाओ, मता तुसी ये कहो भी रब परमात्मा केवल दक्षिण विच वसदा है, ये मता कहो भी रब केवल पश्चिम विच वसदा है, वो जां जगन्नाथपुरी मिलेगा जां मक्के मिलेगा जां होर थावां ते मिलेगा। महाराज कहंदे मैं जेड़े
पासे नज़र मारदा ना गुरु अर्जन देव साहब जी का शब्द हुक्म के रूप च बड़ी वार तुसी पढ़िया सुनिया ते ओदे च महाराज कहंदे जह जह पेखों तह हजूर दूर कतहू ना जाई रव रहा सरबत्र मैं कहते भी वो दाता ते सारे संसार दे अंदर रमिया होया है। जिथे जिथे भी मैं नज़र मारदा जह जह पेखों जिधर जिधर भी वेखदा है उत्थे ही मैनू रब परमात्मा नज़री आउंदा है, उत्थे मैनू वो रमिया होया दिसदा है, उत्थे परमात्मा मैनू नज़र आउंदा है। जां भगत नामदेव साहब दा शब्द है कह लगे भी ये एक तो अनेक अनेक तो एक होके सारे संसार दे अंदर परमात्मा रमिया होया है। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखों तत सोए कह लगे भी जिधर भी मैं नज़र मारदा जिस पासे भी वेखदा मैनू उहदे तो बगैर कोई दूजा नज़र ही नहीं आउंदा। फिर एक शब्द होर भगत नामदेव साहब दा कहंदे जतर जाऊं तत बीठल भैला महा आनंद करे सदकेला कहंदे भी मैं जिधर भी नज़र मारदा जेड़े पासे भी वेखदा जतर जाऊं जिधर जाना है उसे पासे मैनू बीठल मेरा परमात्मा सतगुरु मैनू रमिया होया नजर आउंदा है। जां होर शब्द आप पढ़ते हैं कि सबै घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोले रे कहते भी सारे पासे रब ही रब है। बड़ा गुरु ग्रंथ साहब ने वार वार समझाया हर पासे जपजी साहब दे विच रोज सतगुरु नानक पातशाह समझाउंदे ने भी सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। इको ही दाता है इको ही करता है सारे संसार विच ओही है ओदा रूप है ओदे तो बगैर कुछ भी नहीं। पर फिर भी बंदा इस संसार दे अंदर अपनी मन आई करदा है अपने जो पाप कमाउंदा है। इहदे मतलब हुण ये नहीं भी परमात्मा है ते सबना दे अंदर पर जिहड़ा अगे शब्द है ना लीप ना छिपै छिपै महाराज कहंदे भी ओनू किसी भी तरह का लेप नहीं। इसे प्रथाए भगत नामदेव साहब का एक होर शब्द सुन लो कहंदे मलै ना लाछै पार मलो पर मलियो बैठो री आई। भगत नामदेव साहब कहंदे भी इस संसार दे विच मलै ना लाछै मलै तो भाव मैल लाछै तो भाव लाछण दाग निशान कहंदे रब नूं मैल दा कोई भी दाग नहीं। पार मलो ओ मैल तो रहत है मैल तो पार है परमलियो बैठो री आई कहंदे भी ओ ते रब इदां है भी जिवें फुल दे विच सुगंधी हुंदी है ना ते सुगंधी नूं अज तक किसे वेख्या नहीं पर है ते ना सारे इस गल नाल सहमत ने भी फुल कैसा भी होवे जिहो जी सुगंधी रब ने परमात्मा ने उहदे विच पाई ओहो जी सुगंधी वो बाहर कढदा है। जां धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का शब्द तुसी बड़ी वार पढ़िया सुनिया हो सकदा याद भी होए उहदे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब दाते ने किरपा कीती कि इस संसार च बंदा किसे पासे रब नूं खोजण चला जाए किसे पासे तुर पए पर महाराज कहंदे ये गल याद रख भी वो रब इस तरह संसार दे हिरदे दे विच जां कोने कोने विच जरे जरे विच वसदा है। पहोप मद ज्यों बास बसत है मुकरम है जैसे शाही कहंदे भी हरेक फुल दे विच सुगंधी है ते सुगंधी दे वांग भगत नामदेव साहब कहंदे भी मलै ना लाछै पार मलो पर मलियो बैठो री आई आवत किनै ना पेख्यो कवनै जाने री बाई कौन कहे किन बुझिए रमैया अकुल री बाई। ते अगे ओदे होर महिमा नूं भगत नामदेव साहब ने साडे सामने रखिया कहंदे ज्यों आकाश है पंखी हलो खोज निरख्यो ना जाई कहंदे भी आकाश विच पंछी उड़दा है ते जे कोई कहे भी पंछी इसे रस्ते ते गया मैं उत्थे लीक मार दवां मैं उत्थे निशान ला दवां भी इधर दी पंछी लंघिया भगत जी कहंदे ऐसा नहीं हो सकदा कहंदे भी जिधर दी पंछी लंघ गया जिधर दी एक बार उड़ के लंघ गया वो खोज निरख्यो ना जाई ओदे ते खोजिया नहीं जा सकता। ज्यों जल मझ है मछ लाओ मार्ग पेखणों ना जाए पानी दे विच मच्छी तैरदी है। ते भगत नामदेव साहब कहंदे भी कोई बंदा ये गल कह सकदा है भी मच्छी ऐ दी लंघी ते मैं इत्थे लीक मार दियां मच्छी इस पासों इदां बुलावे करके गई मैं इधर इधर करके निशान ला दियां। महाराज कहंदे भी नहीं इसे तरह वो परमात्मा है सबना थां ते वसदा सारे पासे है हरेक दे अंदर है। मजहब सब दे वक्खो वखरे हो सकदे पर मूल इको ही है शाखा वक्खो वखरियां ने पर कहंदे भी वो दाता परमात्मा सबना दे विच इसे तरह वसदा पर उन्होंने अंत जां उन्होंने पकड़िया नहीं जा सकदा उन्होंने फड़िया नहीं जा सकदा महसूस कर सकते हैं।
धन गुरु रामदास महाराज उन्होंने ये भी कृपा की भी जिन हार जपिया से हार होए, हर मिलिया केल के लाले। कहते भी जिन्हों ने हरि नूं जपिया, परमात्मा नूं जपिया, वो परमात्मा दे वर्गे उन्हां दे अंदर गुण आ गए, जेड़े सत संतोख धीरज धर्म दया, ये 5 परमात्मा दे जेड़े गुण ने ना, ये गुण जेड़े हिरदे विच आके वस गए ते वो इस संसार दे विच परमात्मा दे गुणां नूं वसा के फिर वो सारे संसार दे विच हर थां ते रब नूं रमिया वेख के महाराज कहंदे भी अपने आप आखदा भी उस निरंकार तो बगैर जेड़े पासे मैं जाना वो निरंकार मैनूं रमिया नजर आउंदा है। श्रीमान भगत नामदेव साहब कह लगे भी बसै घटा घट लीप ना छिपै, वो परमात्मा सारे थावां ते वसदा है, हर एक दे वस विच वसदा है, मंदे च भी वसदा है, चंगे च भी वसदा है, पर कहंदे भी ओदे ते माया दा प्रभाव कोई नहीं, ओदे ते माया दा कोई प्रभाव नहीं, वो इस संसार विच इस मैल तो रहत है। ते जिन्हें इस गल नूं धारण कर लिया ओदे परथाए ते भगत नामदेव साहब ने एक होर शब्द बड़ा प्यारा आखिया। वो कह लगे भी नाद भ्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए। हुण बड़ा प्यारा शब्द भगत नामदेव साहब ने उच्चारण किया, कहंदे भी जिवें मृग है ना, मृग हिरण, कहंदे भी जदों कोई शिकारी उहनूं फड़न जांदा है ते जदों खंडे हिड़े दे साज नूं धुन नूं वजाउंदा है ना, वो आपे ते काबू नहीं पा सकदा, वो भावें किन्ना भी अपने उस आवाज तो दूर भजन का जतन करे पर जा नहीं सकता, अपने आप उस आवाज नूं सुनिया खिंचिया उस आवाज वाल तुरिया आउंदा है। प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए, अपना शरीर त्याग दिंदा है, प्राण त्याग दिंदा है, मौत हो जाती है, वो भावें वो शिकारी उन्होंने पकड़ लै फड़ लै पर वाको ध्यान ना जाए, वो साज दा उस धुन दा वो ध्यान अपने हिरदे चों दूर नहीं करता। ते भगत नामदेव साहब ने अगे रहाउ च क्या कहंदे, ऐसे रामा ऐसे हेरों राम छोड़ चित अनंत ना फेरों। कदी इहो जिहा प्यार बनाया असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल, कदी साडे अंदर ये गल ये फुरना पैदा होया भी ऐसे रामा ऐसे हेरो, मैं इदां अपने रब नूं परमात्मा नूं चेते करना जिवें पहला भगत नामदेव साहब उदाहरण दे के आए ने, जिवें उन्हां पहला कहा भी हिरन अपने प्राण तज दिंदा है, अपने आप नूं काबू करवा दिंदा है, पर उस धुन दा नाद दा अपने हिरदे चों ख्याल नहीं वख होण दिंदा। भगत नामदेव साहब कहंदे मैं ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ रब नूं छड्ड के परमात्मा नूं छड्ड के किसे दूजे पासे नहीं। अज दा जो पावन हुक्म गुरु ग्रंथ साहब ने साडी झोली पाया है वह भी भगत नामदेव साहब दा शब्द। ते भगत नामदेव साहब जदों किरपा करदे भी पिंदी उब कले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, कदे इदां आके बड़ी अधीनता नाल निमरता नाल आख्या भी सतगुरु मैं भरमदा भटकदा भटकदा तेरे दर ते हुण आ गया, हुण किरपा कर भी आगे मार्ग पाओ मैनू, अगले मार्ग ते गुरसिੱਖੀ दे मार्ग ते मैनू भगती दे मार्ग ते तोर दिओ, मैनू चंगे कर्मां वाले गुण मेरे हिरदे च वस जाण, मैं एक भगतां दा संग करके अपने जीवन दे अंदर सुधार। कदे आख्या सी गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं जे इन्ने प्यार दे विच आके भगत नामदेव साहब आखदे है भी भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, मैं भ्रम भ्रम के भटक के तेरे दर ते आया है। तो फिर भगत नामदेव साहब नूं रब ने पूछया नहीं भी तू कुन रे, तू कौन है? ते अगों भगत नामदेव साहब ने किरपा कीती, मैं जी नामा हाँ जी, मैं नामदेव हाँ जी। तो फिर सतगुरु परमात्मा ने क्या होएगा ना भी दुनिया दे पदार्थ दुनिया दा रस की कुछ चाहिए दस है। तो भगत नामदेव साहब ने तो नहीं आख्या भी पूरा बनारस मेरा हो जाए, बनारस के तखत ते मैं बैठ जावां, मेरे कोल आ भी होवे आ भी। उत्थे एक बेनती की भी आला ते निवारना जम कारना। कदे असी ये बेनती की सतगुरु अगे। एक विद्वान दे मैं बचन पढ़ रहा सा, उन्हें बड़ी प्यारी गल कही, कहंदा भी अज मैं अपने गुरु नूं मिलन गया, अग्यों सतगुरु ने मैनू खरियां खरियां सुना दित्तियां। कहंदा भी अज मैं अपने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नूं मिलन गया, एक किताब विच लिखिया सी, कहंदा भी मैं अपने गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नूं मिलन गया ते अगों गुरु ने मैनू खरियां खरियां सुना दित्तियां। की आख्या
गुरु ग्रंथ साहब पातशाह वालों विद्वान का फुरना कहता की आख्या, वो कहता भी गुरु ग्रंथ साहब आखदे भी सिखा रोज मंगन ही आ जाना है, कदे कदे मिलन भी आ जाया कर। रोज मंगन आ जाने है ना, भी रोज अपनी डिमांड अपनी लिस्ट लैके आ जाना है भी आ महाराज दे पवित्र बाणी दे भी ये शब्द ने। साहब कहते रोज मंगन आ जाना है, कदे कदे मिलन भी आ जाया कर। कदे कदे ये भी आख्या कर भी सतगुरु अज मैं केवल और केवल तुहानू मिलन आया, अज मैं अरदास करदा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बहा गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार। अज मैं केवल ये अरदास करने वास्ते आया, फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। सतगुरु अज मैं सब कुछ अपना आप तुहाडे तो निशावर, अज तन मन धन सब सौंप गुरु को, अज सब कुछ मैं और याद रखियो जे एक बार असी इन्हां बचना मुताबक अपना आप गुरु अगे ढह ढेरी कर दिता, एक बार अपना आप गुरु अगे समर्पित कर दिता, याद रखियो फिर सारी उम्र वास्ते एक बार गुरु नू आपा समर्पित कर दिता। जिमें गुरु अमरदास साहब ने कृपा की ना, शब्द मरो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरण ना होई। एक बार अपने आप नू मरण मारन दी देर है, फिर सदीवी काल तक गुरु जिउंदिया कर दिंदा है, सदीवी काल तक। फिर साडा निरंकार दे नाल नाता फिर गुरु तो बगैर दूजा कुछ दिसदा ही नहीं। ऐसे रामा ऐसे हेरू, गुरु तो बगैर कोई दूजा नजर ही नहीं आउंदा। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों पहली उदासी करके तलवंडी दी धरती ते जिन्हों अज असी प्यार नाल ननकाना साहब आखदे हैं, उत्थे आए ना 8 साल ते 3 महीनों की पहली उदासी गुरु नानक पातशाह दी। तलवंडी आए ते भाई मरदाने नूं गुरु नानक पातशाह ने कहा भी मरदानिया जा तू भी अपने परिवार नूं बाल बच्चों नाल मिलाप कर, मेल कर। कुछ समय बाद कहंदे भी भाई मरदाना तलवंडी दे नगर विच टहल रहे सन, मुल्ला बैठा है, उन्हें आवाज़ मारी, कह लगे भी मरदानिया गल सुन, कोल बिठा लिया। कहंदे भी मरदानिया तेनू नानक नाल रहिंदियां इन्ने साल हो गए, 8 साल 3 महीनों बाद तू वापस आया है, तेनू इहो जिहा नानक दे कोलों की मिल गया भी नानक तो बगैर कोई दूजा तेनू नज़र ही नहीं आउंदा। ना तू कदी 5 नमाज़ां पढ़ियां, ना कदी तू हज ते गया, ना कदे तू रोजे रखे, ना तू हदीसा दे मुताबक अपना जीवन बसर किया। तेनू इहो जिहा नानक तो की मिल गया भी तू हर वक्त नानक नानक दा नाम जपदा रहना, तू कहना सब कुछ ही मेरा नानक है। पढ़िया साडा धर्म इस्लाम है ते 5 नमाज़ां तू कदे पढ़िया नहीं। ते ओ भाई मरदाना मुल्ला नूं आखदा भी मुल्ला जी तुसी पढ़दे हो? वो कहता भी मैं पढ़दा, बिल्कुल पढ़दा, मैं 5 वक्त नमाज पढ़दा है, मैं रोजे भी रखदा है, मैं हज भी करदा, मैं आ भी करदा, मैं ओ भी, हर एक धर्म गिनाया, हर एक कर्म गिनाया। तो वह फिर ना एक विद्वान ने उन्होंने काव रूप में लिखिया है। जदों भाई मरदाना ते मुल्ला दोवें इकट्ठे बैठे तो ये गल मैं इस वास्ते तुहाडे सामने रख रहा भी किवें भाई मरदाना गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं अपने हिरदे तो प्यार करदा है। ते उस मुल्ले नूं की आखदा, वो कहंदे भी मुल्ला कहे मरदानिया मैं 5 नमाज़ां पढ़ियां ने। मुल्ला आखदा भी मरदानिया मैं 5 नमाज़ां पढ़दा, 5 नमाज़ां दा मैं धारनी हाँ, तो यदा मतलब भी तू नहीं पढ़दा मैं पढ़दा। मुल्ला कहे मरदानिया मैं 5 नमाज़ां पढ़ियां ने। ते बाबा मरदाना अगू आखदा भी मुल्ला जी कादे वास्ते पढ़दे जे? खुदा नूं मिलन वास्ते। खुदा हिरदे च वस जाए, खुदा नूं मिल पाओ, खुदा दे दीदार हो जान, इस वास्ते नमाज़ां पढ़दे हो ना? मुल्ला कहंदा भी बिल्कुल सही है, खुदा साडे हिरदे विच वस जाए, खुदा दे मैं दीदार कर सका, परवतगार मेरियां अखां दे सामने आ जाए, इस वास्ते 5 नमाज़ां मैं अदा करदा है। तो भाई मरदाना कहंदा भी तू 5 नमाज़ां इस वास्ते पढ़दा है भी खुदा मिल पाए। ते मुल्ला जी मैं ते हर वक्त खुदा नूं उस परवतगार नूं अपनियां अखां विचों वेखदा है, हर वक्त हर समय हर थां। वो कहंदे भी मुल्ला कहे मरदानिया मैं 5 नमाज़ां पढ़ियां ने। फिर अगों बाबा मरदाना जवाब दिंदा है, कहंदे मरदाना कहे मुल्ला जी फिर मैं की करा, इधर ते अखां खुदा नाल लड़ियां ने। भाई मरदाना कहंदा भी फिर मैं की करा, तू ते अजे खुदा नूं मिलन वास्ते नमाज़ां पढ़दा है ना।
मैं तो पहले खुदा नूं हर थां ते वेखदा, हर पासे वेखदा है। तो फिर अगे एक होर उन्होंने जिहड़ी सतर लिखी, उन्हें कहे मुल्ला कहे मरदानिया असी जन्नत दे मेवे खावांगे। मुल्ला आखदा भी मरदानिया असी नवाजां पढ़दे हैं, असी रोजे रखते, सब कुछ हदीसां मुताबक सानू जन्नत दे विच मिलने ने खाण वास्ते मिठे मेवे। ते अगों पता बाबा मरदाना जी की आखदे, कहंदे भी उत्थे राज है साडा, असी अपने हत्थीं वरतावांगे। मुल्ला जी तुसी ते कहंदे ना भी असी नमाज पढ़ के, असी रोजे रख के, असी हज करके ते लैन च ला के जन्नत दे मिठे मेवे बुक करोगे ना लैन वास्ते। पर भाई मरदाना इथों तक जाके बाबे नानक नूं प्यार करदा, कहंदे भी उत्थे राज है साडा। मुल्ला जी उत्थे मेरे बाबे दा राज है, मेरे गुरु नानक दा राज है। ते जिथे गुरु नानक दा राज है, गुरु नानक दा चाकर मरदाना उत्थे ही पहुंचेगा। कहंदे उत्थे राज है साडा, असी अपने हथीं वरतावांगे, उत्थे वरताउने ते मुल्ला जी असी है। ते तुसी बुक करके खड़ना ते फिर साडे ही अगे ही है ना। इहदे नालों चंगा है भी तुसी केवल बाहरी तौर पर नहीं, अपनी अंदरूनी हिरदे तो उस खुदा नूं, परवतगार नूं, जिहड़ा दुनिया दे अंदर संसार दे हर थां ते रमिया है, उहनूं वेखण दा यतन कर। ते साहब कहंदे बंधन मुक्ता जात ना दिसै, वो बंधना तो मुक्त है, बंधना तो मुक्त। किसी भी तरह का परमात्मा नूं, परवतगार नूं कोई बंधन नहीं। बंधन ते सानू है ना, असी है ना बंधना दे विच वेड़े हुए। पर गुरु ग्रंथ साहब ये भी कृपा करते, महाराज कहते भी आप मुकत मुकत करे संसार। इन्ना वड्डा समर्थ है गुरु, इन्ना वड्डा समर्थ है परमात्मा, वो आप भी मुकत है। ते जेड़ा जेड़ा उन्नू जपदा है, जेड़ा जेड़ा उन्नू ध्याउंदा है, उहदे दसे मार्ग ते तुरदा है, उन्नू भी मुक्त कर दिंदा है। महाराज कहते बंधन मुक्ता जात ना दिसै। फिर अगे अंत विच क्या, पानी माहे देख मुख जैसा। भगत जी कहते भी पानी दे विच जिवें पहली उही उदाहरण आ गई भी जैसे दर्पण में बदन परवानी, इत्थे कह दिता पानी माहे देख मुख जैसा। कहते भी पानी दे विच जिवें अपना मुख मूँह वेखीदा है ना, ते बंदा 2 मिनट वेखे, 10 मिनट वेखे, 20 मिनट वेखे, पानी दे विच अपना मूँह वेखदा रहे, शरीर वेखदा रहे, पर पानी दा उस मूँह ते उस शरीर ते कोई प्रभाव पैंदा है किसी तरह का? हाँ, बंदा बुक भर के मूँह ते मारेगा, फिर तो है भी पानी मूँह ते लगेगा, साडे केसां ते लगेगा, बंदा दे जिहड़ी वो चमड़ी नूं स्पर्श करेगा, गिला होएगा। पर जे केवल मूँह पानी विच दिस रहा है तो भगत नामदेव साहब कहते पानी माहे देख मुख जैसा। पानी दे विच जिवें अपना मुख वेख्या जाए तो कहते नामे को स्वामी बीठुल ऐसा। इहदे अर्थ विद्वाना ने होर बड़े प्यारे किते, कहते भी जिवें मैं पानी विच अपना मुख वेख्या ना, मैं पानी च वेख्या भी मैं इस तरह का है, कहते भी उस तरह नामे को स्वामी बीठुल ऐसा। इस तरह का नामे का स्वामी रब परमात्मा है। इसे तरह क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर है, परमात्मा की जोत मेरे अंदर है, तो जदों तक ये जोत अंदर है उदों तक इहदा मतलब भी परमात्मा साडे अंदर है। तो जदों ये जोत ये काया दे विचों वख हो जाए, भगत नामदेव साहब कहंदे भी जिवें मैं पानी विच मूँह वेखिया उस तरह का नाम देव दा स्वामी बीठुल मैनू नजर आउंदा है, वेखदा है भी जिवें दा मैं। ताई ते शब्द भगत नामदेव साहब ने कृपा की ना, जदों असीं पढ़दे आ भी हे परमात्मा तू इस संसार च तेरा नाम खूब खूब है, ये दुनिया का गुमान झूठ है, इस संसार दे विच मैं वेख्या भी परमात्मा तू द्वारका नगरी का मालक है, तेरे सिर ते सुंदर दस्तार है। ये सारा शब्द भगत साहब ने उचारण किया ते कह लगे भी हे सतगुरु मैनू इदां दा नज़र आउंदा है नामे दा स्वामी परमात्मा, जिहो जिहा मैं हाँ मेरे वर्गा जां मैं परमात्मा वर्गा, क्योंकि कहो कबीर ए राम की अंश, ये परमात्मा दी अंश है, परमात्मा दी जोत है, परमात्मा हिरदे च वसदा है। ते भगत जी कह लगे भी वो परमात्मा नू इस शब्द दे राही सानू समझाउण दा यतन कीता भी जिहड़ा हर थां ते वसदा है, जिहदे ते माया दा कोई प्रभाव नहीं, उस परमात्मा नू इस प्रकार याद कर, चेते कर, हर थां ते वेखण दा यतन कर। सतगुरु कृपा करन। समय दी समाप्ति है। विचारां करदियां होइयां
ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।